نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله تعالى وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا آخری عشرہ گزر رہا ہے اور اس عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا، یہ انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر یہ رمضان بھی یوں ہی گزر گیا اور ہماری بخشش اور مغفرت نہ ہو سکی، جہنم سے خلاصی اور چھٹکارا حاصل نہ ہو سکا، تو پھر ہماری تباہی اور بدبختی میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو اور صدق کے دل سے توبہ کرو، پکی سچی توبہ کرو۔ گناہ ایک نحوست ہے اور نیکی ایک روشنی ہے، گناہ تاریکی ہے، نیکی روشنی ہے۔ گناہوں سے بچنا اور نیکی کو حاصل کرنا، یہی ایمان اور یہی جنت کی نشانی ہے۔ گناہ سے انسان ندامت پاتا ہے اور نیکی سے انسان سلامتی پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے نیکی کی راہ کو اختیار کرنا، یہی اللہ کو محبوب، یہی ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور یہی کامیابی ہے۔ اس لیے اس آخری عشرے کے اندر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، صدق کے دل سے اللہ سے معافی مانگیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ سے توبہ کرنے کے بعد گناہ سے اسی طرح نفرت کرو جس طریقے سے گناہ کے ساتھ تمہیں پہلے محبت تھی۔ گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی مٹا دیتے ہیں اگر صدق کے دل سے توبہ ہو، توبہ تنصوحہ، توبہ النصوحہ ہو۔ توبہ النصوحہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے 4 کام کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، دل سے شرمسار ہو کہ میں نے یہ جو گناہ کیا ہے، اللہ تو معاف فرما دے، میں شرمندہ ہوں، میں اس گناہ کے اوپر نادم ہوں، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ دل سے شرمندگی ہو، شرمساری ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو۔ اور دوسرا یہ کہ دل حسد سے پاک ہو۔ اگر گناہ بھی ہے اور اس سے توبہ کر رہا لیکن دل کے اندر حسد ہو، کینہ ہو، دوسروں کی نفرت بھری ہوئی ہو، تو اس گناہ سے توبہ حاصل ہوتی ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر جن 4 لوگوں کی بخشش نہ ہونے کا ذکر ہوا، ان میں ایک مشرک، دوسرا والدین کا نافرمان، اور تیسرا شراب کا عادی، اور چوتھا وہ شخص ہے جس کے دل کے اندر کینہ ہو۔ کینے والے کی بخشش نہیں ہوتی، اس لیے دل کو کینے سے پاک کرنا ہوگا، نفرتوں سے پاک کرنا ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، جس نے جنتی کو دیکھنا ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ وہ ساتھی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، کچھ دیر کے بعد اٹھ کے چلے گئے۔ ایک صحابی کو تجسس ہوا کہ آخر کون سا ایسا عمل ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارت سنا دی۔ ساتھ ہو کر چل دیے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچے، یہ بھی گھر پہنچ گئے، کہنے لگے اگر اجازت ہو میں کچھ دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اجازت مرحمت فرمائی۔ 3 دن ان کے ساتھ رہے، ان کے اٹھنے کو، ان کے سونے کو، ان کے بیٹھنے کو، ان کے کاروبار کو، ہر چیز کو غور سے دیکھ رہے ہیں کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے دنیا میں ہی ان کو بشارت جنتی ہونے کی مل رہی ہے۔ جب
गौर से देखा, कोई ऐसा अमल न मिला जो बाकियों से जुदा हो। जो अमाल बाकी सहाबा कर रहे थे वही अमल वो भी सहाबी भी कर रहे हैं। तो फिर पूछ लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप आ रहे थे तो आपको देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, एक जन्नती आ रहा है, लेकिन मैंने आपके पास रहने के लिए जो नीयत की, आपका मेहमान बना, वो सिर्फ इस तजस्सुस के अंदर कि कहीं मुझे ये बात महसूस हो जाए कि आखिर वो कौन सा अमल है, लेकिन मुझे तो कोई ऐसा अनोखा अमल या कोई ज़्यादा अमल तो मिला नहीं। वही अमाल जो बाकी सहाबा करते हैं आप भी वही करते हैं। आखिर कौन सी वजह थी जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत सुनाई? तो वो फरमाने लगे कि और तो कोई अमल मेरा ऐसा नहीं है, हाँ एक अमल ज़रूर है कि जब भी रात को सोता हूँ तमाम लोगों को माफ़ करके सोता हूँ। कोई ऐसा शख्स नहीं होता कि जिसके बारे में मेरे दिल के अंदर ज़र्रा बराबर की ना हो। सबको अल्लाह के लिए माफ़ कर देता हूँ। और मुझे अल्लाह से यकीन है कि जो दुनिया वालों को अल्लाह के लिए माफ़ कर देता है, अल्लाह क़यामत के रोज़ उसको भी ज़रूर माफ़ फरमाएंगे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि तौबा सच्ची करने के लिए एक तो दिल से शर्मसारी हो, नदामत हो, शर्मिंदगी हो। नंबर 2 हसद से दिल पाक हो। नंबर 3 फासिक लोगों से ताल्लुक़ को तोड़ दे। फासिक लोगों से ताल्लुक़ को तोड़ दे। हम हर रोज़ जब वितर पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला से अहद करते हैं कि हम या अल्लाह फासिक फाजर से अपने ताल्लुक़ को तोड़ देंगे। ताल्लुक़ तोड़ने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि उनसे नाराज़गी कर ली जाए। मतलब ये है कि दिल के अंदर जो एक मोहब्बत का ताल्लुक़ है, वो मोहब्बत का ताल्लुक़ फासिकों के साथ ना हो। उसके लिए हम दीनदार लोगों को तलाश करें, नेक लोगों को तलाश करें, उनकी मजलिस में बैठें। हमारी दोस्तियाँ, हमारे ताल्लुकात नेकों के साथ होने चाहिए। और चौथा अमल ये है कि वो मौत की तैयारी के अंदर लग जाए, क्योंकि एक ना एक दिन ज़रूर इस दुनिया से हर इंसान ने जाना है। ये वो एक हकीकत है कि काफिर भी इसका इनकार नहीं कर सकता कि मौत ज़रूर आनी है, और इस मौत के बाद मरना नहीं बल्कि हमेशा की ज़िंदगी की इब्तिदा है। इसलिए इस मौत की तैयारी के अंदर लग जाए। कोई ऐसा काम ना हो जिससे रब ज़ुल जलाल नाराज़ हो जाए। नेकी करने से ज़्यादा अच्छा ये है कि इंसान गुनाहों से बचता रहे, और नेकी थोड़ी भी हो गुनाहों से बचता रहेगा, इंशाअल्लाह ये जन्नती बन जाएगा, ये अल्लाह का महबूब बन जाएगा। और जब इंसान अपने गुनाहों से तौबा करता है, अल्लाह को वो बहुत पसंद आता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी मिसाल देकर समझाया कि अल्लाह उस आदमी से किस तरह खुश होते हैं जो अपने गुनाहों से तौबा करता है, माफ़ी मांगता है। फरमाया इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक सहरा के अंदर एक शख्स हो और ऊंट के ऊपर सवार हो, अपनी तमाम खुराक पूंजी उस ऊंट के ऊपर रखी हुई है, सहरा में दूर दूर तक आबादी नहीं है, थक गया, थोड़ी देर आराम के लिए उतरा और वहाँ लेटा ही था, आंख लग गई। जब आंख खुली तो देखा कि वो सवारी उसके पास नहीं है। बड़ी तलाश की, सवारी मिली नहीं, दूर तक देखा, आखिर तलाश कर कर के थक गया। और फिर इस इंतज़ार में भूख भी शिद्दत की, प्यास भी शिद्दत की कि किस वक़्त मौत का फरिश्ता आता है, मेरी रूह कब्ज़ करता है, वापस लेट जाता है। फिर आंख लग जाती है, अचानक आंख खुलती है तो देखता है कि सवारी सामने खड़ी है। किस कदर इस इंसान को खुशी होगी कि मौत के मुंह से बचकर इसको दोबारा ज़िंदगी हासिल हो जाती है। फरमाया कि जो आदमी तौबा कर लेता है, अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है, अल्लाह अपने बंदे से इससे भी ज़्यादा खुश होते हैं। तो मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वाले को बहुत पसंद करते हैं और अल्लाह बड़े इनामात से भी नवाजते हैं। तौबा करने वाले के लिए पहला इनाम यह है, 4 इनामात अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वाले को इनायत फरमाते हैं। पहला इनाम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। चनाचे हदीस पाक के अंदर आता है, अत्ताइबु हबीबुल्लाह, तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त बन जाता है। दूसरा बड़ा इनाम उसको ये मिलता है कि अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देते हैं, हत्ता के दफ्तरों से जिन रजिस्टरों के अंदर लिखा हुआ उनसे भी मिट जाता है। वो फरिश्ते जो लिखने वाले हैं अल्लाह उनको भी भुला देते हैं। ज़मीन के जिस खित्ते के ऊपर इसने गुनाह किया अल्लाह उसे भी भुला देते हैं।
चनाचे हदीस पाक में आता है, अत्ताइबु मिन ज़म्बी कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। तीसरा इनाम अल्लाह उसे ये देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसे अपने मुखलिस बंदों के अंदर शामिल फरमा देते हैं। शैतान के हथकंडों से अल्लाह उसको बचा लेते हैं। और अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाते हैं, मेरे बंदे वो ऐसे हैं कि शैतान तेरा उनके ऊपर जोर नहीं चढ़ेगा। इन्ना इबादी लैसा लक अलैहिम सुल्तान, मेरे बंदों के ऊपर तेरा जोर नहीं चल सकता। जो अल्लाह का महबूब हो जाता है, अल्लाह का पसंदीदा हो जाता है, शैतान से अल्लाह उसको दूर फरमा देते हैं। और चौथा उसको बड़ा इनाम ये मिलता है कि मौत से पहले ही अल्लाह फरिश्ते भेजते हैं और उसको उसके अच्छे अंजाम की खुशखबरी सुना दी जाती है। उसको ये बतला दिया जाता है कि अल्लाह के महबूब लोगों के अंदर शामिल हुआ। चनाचे अल्लाह फरमाते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, तुम्हारे ऊपर फरिश्ते उतरते हैं और वो तुम्हें कहते हैं तुम खौफ मत खाओ, तुम गमज़दा मत हो जाओ, तुम्हें खुशखबरी है जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया था। इसलिए नाज़रीन कराम, हमें चाहिए ये कि अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, तौबा करें। शैतान इंसान की निगाहों में गुनाह को हल्का करके पेश करता है। इसका बड़ा वार ये होता है कि वो गुनाह के बारे में दिल में ये ख्याल डालता है, ये गुनाह तो अक्सर लोग करते हैं, ये तो हो ही जाता है, इससे बचना तो बहुत मुश्किल है, आजकल तो ये गुनाह आम हो गया, सभी इसमें मुलव्वस हैं, मैंने कर लिया तो क्या हो गया। हरगिज़ ऐसे नहीं, गुनाह एक चिंगारी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि ईमान वाला गुनाह को एक पहाड़ जैसा समझता है और मुनाफिक आदमी वो ऐसे समझता है जैसे एक मक्खी हो। इसलिए हमें गुनाह को बड़ा समझना चाहिए। कोई गुनाह छोटा नहीं होता। बस ये समझ लें, जब कोई गुनाह का ख्याल दिल में आए तो ये समझ लें। एक बुज़ुर्ग थे, वो कहने लगे कि जब भी मेरे दिल में गुनाह का ख्याल आता था तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक बात इल्का की, मेरे दिल के अंदर ये बात डाली कि ऐ मेरे बंदे, तू दुनिया वालों से तो छुप जाता है, एक बंद कमरे के अंदर आ जाता है, सारे पर्दे कर लेता है, क्या अपने खालिक जिसने तुझे पैदा किया, जिसके तेरे ऊपर इनामात हैं, उससे भी छुप सकता है? बस ये ख्याल दिल में हो कि मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है, जो मुझे नवाजने वाला, पैदा करने वाला, इनामात की बारिशें करने वाला, उस अल्लाह से मैं कैसे छुप सकता हूँ? उस अल्लाह के सामने कैसी मेरी जुर्रत है कि मैं गुनाह करूँगा। इसलिए इस बात को सामने रखते हुए अल्लाह से माफ़ी मांगें और मौत की तैयारी के अंदर लगें। रमज़ान की जो लम्हात, जो घड़ियाँ बाकी हैं, इनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला से गुनाहों की माफ़ी मांगना, रो रो के अल्लाह से सुलह करना। अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है और उससे माफ़ी मांगने के अंदर लग जाना, यही कामयाबी की दलील है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दाअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।